Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, from our previous class, we were solving this exercise 2.1 second question, and today we'll continue from this fifth question. Okay. So, your fifth question, you have two numbers again, 653 and 238, and both are three-digit numbers. So, we don't need to think much. We simply need to add up. Okay, so you have to arrange in columns like this: 653, so 653, and 238, so 238, and you simply need to add them. For it, what we do, we start addition from back of the side, the rightmost side. Okay, and we'll count smaller number in 3 and add which is smaller. 3 is smaller, so we'll count 1 2 3, and then we'll start our counting after the bigger number, which is 8 here. So we'll start our counting after 8, 9 10 11. ठीक है बच्चों, 8 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, यहाँ तक बोलनी है 11 तक. So this is your 11, so one will go over here and then the next one will come over here. And we know whenever we add this 5 to 1, whenever we add 1 to any number, we have to say just successor of it. So 5 plus 1 will be 6, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है. तो कुल मिला के हमको 6 में क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है. हालांकि अब आपको याद रखना है जैसे 6 प्लस 3 ऑलवेज 9 होता है. ठीक है, तो 3 को हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, एंड वी स्टार्ट आफ्टर आवर काउंटिंग आफ्टर 6. तो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9. सो हियर वी हैव 9. ओके, नाउ अब हमें क्या प्लस करना है, 6 प्लस 2. सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल काउंट 2 1 2 एंड विल स्टार्ट आवर काउंटिंग आफ्टर 6. तो 6 के बाद क्या आता है, 7 एंड 8. सो 6 प्लस 2 विल बी 8. सो फाइनल आंसर विल बी 891. Okay, but I want you to solve it yourself. Don't copy the answers. Okay, again we have the combination of three numbers over here. Okay, so again these three numbers are of 3 digits, so no worry we have to do, because we don't have to think much. What we have done in this fourth question, there was one number which was 2-digit number, so we have to arrange like this and we have to change our formation. But this time you can write it directly. First number is 190, so you will write 190. Then your second number is 307, so you have to write 307. Then your third number is 301, so you will write 301. The ones digit will comes just beyond your ones place, then tens digit beyond tens place, and this hundreds digit beyond 100 place. Okay, and maintain a significant distance between two digits. Now we know whenever we add 0 to any number we get same number. So 7 plus 0 will be 7 only, right? Because 0 means nothing. Nothing you have added to 7, that means it will remain 7. Then 7 plus 1 is equals to 8, because whenever we add 1 to any number, it means you have to just say the successor of it. So successor of 7 is 8, so 7 plus 1 is equals to 8. Now 9 plus 0 will be 9 only, and then again 9 plus 0 will be 9 only, because these two zeros are adding up nothing over here. Okay, इन दोनों जीरो को ऐड करने से कुछ भी नहीं मिला. तो कुछ भी नहीं मिला मतलब 9 में 0 ही प्लस हो रहा है, तो 9 का 9 ही आ जाएगा. 9 में कुछ प्लस ही नहीं हो रहा है. फिर बच्चों 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 1 7. एक तो ये तरीका है. या फिर आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो तो पहले 1 में 3 प्लस करो, तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 4, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, तो 1 प्लस करने का मतलब ही आपको आगे वाला नंबर बोलना है. सो जस्ट आगे वाला नंबर 3 प्लस 1 4, और 4 में अगर आप 3 प्लस करोगे तो 4 और 3 में कौन छोटा है, 3. सो विल काउंट 3 1 2 3. ठीक है, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 4 के बाद से. 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7. सो 4 प्लस 3 विल बी 7. तो इसी को बच्चों आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसी की टेबल 2 बार बोल दो, 2 टाइम्स बोल दो, 3 2 जा 6. ठीक है, और 6 प्लस 1 7. इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 798. ठीक है, नाउ this time again we have a 3-digit and 2-digit combination, which means we have to write 325 3-digit number, and then below it 2-digit number which is 72. ठीक है बच्चों, 7 इसके नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 72 क्या है, 2-digit नंबर है, तो इसमें सिर्फ वंस और टेंस ही है, हंड्रेड्स तो है ही नहीं. तो हंड्रेड्स के नीचे क्यों लिखेंगे हम, वंस वाला वंस के नीचे आएगा, मतलब 5. इसमें वंस कौन है, 5 वंस टेंस 100. तो इस वंस के नीचे ये वाला वंस आएगा, मतलब 5 के नीचे 2 आएगा.
इस वाले टेंस के नीचे ये वाला टेंस आएगा, ठीक है, तो 2 के नीचे 7 आएगा। 100 तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपली हमको 325 ऐसे लिखना है और 72 ऐसे लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हम लास्ट 2 क्लासेस से डिस्कस करते ही आ रहे हैं। नाउ सो वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर 5 + 2, ठीक है। 5 और 2 में छोटा कौन है? 2, सो 1 2, ये हमने 2 काउंट कर लिया जल्दी से। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 5 के बाद से। तो 5 के बाद क्या आता है? 6 and 7, सो 5 + 2 विल बी 7। ये भी बच्चों बार बार रिपीट होता है, तो आपको याद कर लेना है कि 5 + 2 7 होता है, 5 + 3 8 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब याद हो जानी चाहिए, धीरे धीरे रटते रहिए, ताकि ये नंबर अगर बार बार आएँ तो आप पता लगा सकें अभी नेक्स्ट में वापस आने वाला है 5 + 2, तो हमें याद रखना है कि 5 + 2 7 होता है, ठीक है। नाउ 7 + 2 9 पहले भी आ चुका है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 2 हम काउंट करेंगे 1 2 और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 7 के बाद से, तो 8 और 9, ठीक है। 7 + 2 9, ये नंबर बच्चों बार बार आते हैं, तो इससे अच्छा हम इसको याद ही कर लें कि 7 + 2 9 ही होता है, 8 + 3 11 ही होता है, 8 + 4 12 होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है? कोई कैरी भी नहीं आया और 3 है और नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो 3 का 3 आ जाएगा नीचे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 397, ठीक है। Now, next you have combination of 3 numbers 132, 345 and 200. Okay, so we'll arrange one by one. 132, 132. There is no 2-digit number, so we don't need to think much. We simply will write it 132, then 345 and arranging them in columns 200, so 200. ठीक है, पहले अच्छे से अरेंज कर दिया, वंस के नीचे वंस वाले डिजिट, टेंस के नीचे टेंस वाले डिजिट और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स वाले डिजिट। उसके बाद हमको क्या करना है? सिंपली सोल्व करना है। 5 + 2 अभी हमने किया है 7, याद कर लेना है कि 5 + 2 7 ही होता है, ठीक है। सो 5 + 2 विल बी 7, और ये भी बार बार आता है 4 + 3 4 + 3, तो ये भी याद कर लो कि 4 + 3 भी 7 ही होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, ठीक है। क्योंकि 4 में एक बढ़ा दो और इसमें एक कम कर दो, इसमें एक बढ़ा दिया इसमें एक कम कर दिया, तो रिजल्ट सेम ही रहा, इसको दे दिया इससे ले लिया, ठीक है। सो 4 + 3 7 कैसे होता है? 4 और 3 में छोटा कौन सा है? 1 2 3, 3 काउंट कर लो, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 4 के बाद से, तो 5 6 7, तो 4 + 3 7 होगा, और 7 में अगर ये 0 प्लस करेंगे तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो सिंपली 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको याद रखनी है, 5 + 2 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। ये नंबर बार बार आते हैं, क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, ठीक है। नाउ 3 + 1 4, जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर बोलते हैं, तो 3 + 1 क्या हो गया? 4, तो मतलब ये 4 बन गया, और 4 में हमें कितना प्लस करना है? 2 प्लस करना है। तो 4 में अगर मुझे 2 प्लस करना है तो पहले मैं 2 काउंट कर लूँगा, क्योंकि 2 4 से छोटा होता है, तो 1 और 2, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 4 के बाद से, 4 के बाद क्या आता है? 5 6, सो इट विल बिकम 6, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 677, ठीक है। So in this way we arrange the numbers in columns and then we add up it. Now next फॉर्मेशन है बच्चों आपका 946 and 49, ठीक है। Let me adjust the camera for a while. Sorry for the disturbance, interruption. Okay. सो वी हैव टू एड अप 9 446 एंड 49। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? अगेन 3 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो 3 डिजिट नंबर को पहले आप लिख लो 946, तो 946। अब ये क्या है? 49 है, तो 49 का हमको कैसे लिखेंगे? यहाँ ऐसे, 9 जो है वंस का है, तो वंस के नीचे ही आएगा। इसका वंस कौन है? इसका वंस है 6, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो इसका वंस कौन हुआ? ये, और इसका वंस कौन हुआ? ये, तो वंस के नीचे वंस वाला डिजिट आएगा। इसका टेंस कौन हुआ? ये वाला 4, और इसका टेंस कौन हुआ? ये वाला 4। वंस टेंस ऐसे ही पीछे से काउंट करते हैं हम, वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है। तो वंस के नीचे वंस वाला डिजिट, टेंस के नीचे टेंस वाला डिजिट, ठीक है। और इसको देख के आप दिमाग में बिठा लोगे, 3 डिजिट के नीचे 2 डिजिट ऐसे ही लिखते हैं, 9 सबसे पीछे आता है, फिर उसके आगे 4 आएगा, ठीक है। अब बच्चों एक ट्रिक हम सीख चुके हैं कि जब भी हम 9 में कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे मुझे 6 ऐड करना है, तो 6 के पहले क्या आता है? 5, और 5 के पहले 1 लगा दो, तो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा, ठीक है। तो जिसको ये ट्रिक आती है वो तो डायरेक्ट मन में समझ ही गया होगा कि 9 + 6 15 ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 6 के पहले 5 आता है तो 15।
अगर 9 में 5 प्लस करते हैं तो 5 के पहले क्या आता है 4, तो 14, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। और जिनको अभी तक ये ट्रिक नहीं आई है वो फिंगर से करेंगे। 9 और 6 में कौन छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, और काउंटिंग बोलेंगे कहाँ से, 9 के बाद से। तो 10 11 12 13 14 15, 15 ही आया, हमें वैसे ही पता था 15 आने वाला है क्योंकि 6 के पहले 5 आता है, तो 15, तो 1 जाएगा कैरी में और 5 आएगा नीचे। 4 को बच्चों 2 टाइम्स ऐड करना है, तो क्यों ना हम 4 2 जा 8 बोल लें, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 में हमको 1 ही प्लस करना रहेगा, और जिसमें भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसके आगे वाला नंबर बोल देते हैं, और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। और जो ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं अभी तक वो कैसे करेंगे, 4 + 1 5, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, 1 में जब भी हम 1 ऐड करते हैं तो मतलब आगे वाला नंबर हमें बोलना होता है, तो 4 + 1 5, और 5 + 4, अब इस 5 में क्या प्लस करना है 4, तो 4 छोटा है तो 4 को काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 5 के बाद से, 6 7 8 9, तो 5 + 4 कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है। और ये नंबर भी बार बार रिपीट होता है 5 + 4 वाला। और जो डायरेक्ट कर सकते थे बच्चों, आपको पता है 4 जो भी नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी टेबल 2 टाइम्स बोल लो। 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 4 2 जा 8, तो 4 + 4 कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 में 1 प्लस किया तो 9 आ गया। और यहाँ पे तो 9 है, कोई कैरी नहीं है, तो 9 का 9 ही आ जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे कोई डिजिट है ही नहीं। तो फाइनल आंसर कितना हुआ हमारा, 995, ठीक है। नाउ इस बार भी बच्चों हमको 3 नंबर्स के फॉर्मेशन है, ठीक है। तीनों ही 3 डिजिट के नंबर हैं, तो तीनों को पहले एक के बाद एक अरेंज कर लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या है 100, तो 100 लिख लो, और डिजिट के बीच में गैप प्रॉपर देना, ठीक है। उसके बाद 288, 288 लिख लो, ठीक है। फिर 111, तो इस तरह से 111 लिख लो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस वाला डिजिट, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स वाला डिजिट, ठीक है। और फिर तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। हमको पता है जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले 8 + 0 करोगे तो 8 ही मिलेगा, क्योंकि 0 मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो वही नंबर रहेगा। फिर 8 + 0 8, और 8 में कितना प्लस करना है अब 1, तो 8 + 1 9, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है 9, ठीक है। वापस से यही फॉर्मेशन है हमारे पास, 8 + 1, तो अभी हमने काउंट किया 8 + 1 क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। और लास्ट में 2 + 1 3, क्योंकि 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर बोलते हैं, तो 2 + 1 3, और ये दोनों मिलके 3 बन गए, तो 3 + 1 4, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद के हाथों से करना है, यहाँ से कॉपी नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपका जो है कमांड एडिशन पे अच्छा बने, ठीक है। खासकर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई 3 डिजिट और 2 डिजिट का नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो 2 डिजिट का नंबर इस तरह से हम लिखते हैं, वंस के नीचे वंस वाला, टेंस के नीचे टेंस वाला डिजिट, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं। तो बच्चों था ये तो था आपका एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll continue this chapter, so till then, goodbye all of you.